چلیں جی بچے کہاں ہیں؟ چلو جی، آج اردو ہی کی کلاس ہے. یہ اردو کی کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اور ہم اردو میں آج کیا پڑھیں گے؟ ہم نے نعت ختم کر لیا تھا نا سبق، ٹھیک ہے. چلیں جی، ہم نے نعت کا سبق بیٹے ختم کر لیا تھا. آج میں آپ کو ایک نیا ٹاپک پڑھاؤں گی. یہ آپ کی اردو کی کتاب ہے نئی فوزیہ احسان فاروقی کی. جیسے کہ مشائل مجھے دکھا رہے ہیں ویڈیو میں، بالکل یہی کتاب ہے. اچھا، اس کے سب سے پہلے صفحے پہ اصل میں شروع میں نے آپ کو یہ چیز اس لیے نہیں کروائی تھی کہ شروع میں بچوں کی ذرا اسٹرینتھ کم تھی. تو ایک منٹ بیٹے، یہ میں چلیں. ہاں جی، یہ آپ کی نظر آ رہی ہے بیٹے اسکرین؟ یہ آپ کا نا سب سے پہلا صفحہ ہے مضمون نویسی. اچھا، یہ آپ نے لفظ سنا ہے کبھی؟ یہ بتائیں پہلے، کیا آپ نے کبھی یہ لفظ پہلے سنا ہے مضمون نویسی کا؟ ہاتھ اٹھائیے گا اگر کسی آپ میں سے کوئی جانتا ہے کہ مضمون نویسی کیا چیز ہوتی ہے. آپ مضمون سنا ہے؟ لفظ مضمون سنا ہے؟ اچھا جی، آصفہ. جی آصفہ بتائیں. کہیے آصفہ. ہاں، مضمون سنا ہے نا؟ لفظ مضمون لکھا ہے کبھی؟ یس مس. اچھا، مضمون سے ہی ایک لفظ آپ نے شاید سنا ہو، مضمون نویسی. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے مضمون نویسی. کسے پتا ہے مضمون نویسی کیا چیز ہوتی ہے؟ خطوط نویسی، مضمون نویسی. جی آصفہ، آپ کا ہاتھ تو اٹھا ہوا ہے لیکن آپ بول تو کچھ بھی نہیں رہی. شاید جس جون سے مضمون ہوتے ہیں. جی جی، مضمون ہوتے ہیں. اچھا عبد المعید، چلیں آپ بتائیے. میم ایسے رائٹنگ. ایسے رائٹنگ، جی ایسے رائٹنگ. یہ جواب آپ کا ٹھیک ہے، بس انگریزی میں ہے، یعنی کہ مضمون لکھنا، ایسے لکھنا، معلومات فراہم کرنا. شاباش، ٹھیک ہے، کسی بھی موضوع پہ. چلیے پہلے یہ تو آپ کا میں نے صفحہ اس لیے سامنے اسکرین پہ میں لے کر آئی ہوں کہ جن کے پاس کتاب نہیں ہے ابھی تک، تو یہ ہے وہ صفحہ جس کے بارے میں آج میں آپ کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے. اچھا، مضمون نویسی، اس کا ایک اور نام ہے مضمون نگاری، ٹھیک ہے. یہ دونوں، جیسے آپ ایک ہی چیزوں کے دو نام ہوتے ہیں نا، جیسے پسندیدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بریانی میرا پسندیدہ کھانا ہے. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ بریانی میرا محبوب کھانا ہے یا میری محبوب غذا ہے. تو جیسے ایک ہی معنی کے دو دو تین تین الفاظ ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی ہے. مضمون نویسی کہہ لیں آپ یا مضمون نگاری، اس کا مطلب ہوتا ہے مضمون لکھنا، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ مضمون لکھنا، یعنی کہ جو بھی آپ کو ٹاپک دیا ہے، جو بھی موضوع دیا ہے. ٹاپک میں نے اس لیے لفظ استعمال کیا کہ یہ آپ کے روزمرہ استعمال میں ہے لفظ، آپ اس کو جلدی پہچان جائیں گے. اردو میں کہتے ہیں ٹاپک کو موضوع. جو بھی آپ کو موضوع دیا جائے، مثال کے طور پہ صفائی ستھرائی، یا آپ کو کہیں کہ علم حاصل کرنا، یا علم حاصل کرنے کا ٹاپک دے دیں، علم کا ٹاپک دے دیں، یا والدین کی خدمت آپ کو دے دیں موضوع، کوئی بھی موضوع دے دیں کہ اس موضوع پر آپ کیا جانتے ہیں اس موضوع کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو جو کچھ آپ کو علم ہو اور جو معلومات آپ اکٹھا کریں، اسے بہت خوبصورت انداز سے، طریقے سے، اچھے جملوں کے ذریعے اور تسلسل، یعنی کہ ایک کنٹینیوٹی کہتے ہیں. تسلسل کا مطلب ہوتا ہے کہ
جو मालूमात आप लिख रहे हैं उसका आपस में जो ताल्लुक बन रहा हो, सही, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने अभी एक बात की और दूसरा जुमला आप ऐसा लिखें कि आपस में दोनों जुमलों का कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, ठीक है। तो तसलसल के साथ कि आपस में जुमलों का ताल्लुक एक दूसरे से बना रहे, इस तरह से मालूमात को इकट्ठा करना किसी मौजू को पर कहलाता है मजमून निगारी, यानी मजमून लिखना, ठीक है। अच्छा, तो हम मजमून लिखना सीखेंगे। वैसे तो आप पहले भी मजमून लिख चुके हैं, लेकिन मजमून लिखते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। कोई भी जैसे अच्छा आप इसकी मिसाल ऐसे लें कि जैसे आपकी अम्मी खाना बनाती हैं किचन में, है ना, आपको अपनी अम्मी के बनाए हुए खाने अच्छे भी लगते होंगे, तो कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि अम्मी बस सुबह उठ के ना ऐसे ही बगैर कुछ सोचे समझे खड़ी हो जाती हूँ किचन में कि अच्छा चलो कुछ भी निकाला, इधर उधर गंद फैलाया, पकाया, ऐसे नहीं करती होंगी ना अम्मी। अम्मी ने पहले से कुछ सोच के रखा होता होगा कि आज ये पकाऊंगी, इसके लिए मुझे फलां 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 चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें अम्मी मंगवा लेती हैं, तरीके से अम्मी किचन में रखती होंगी, फिर तरतीब से उन चीज़ों के ज़रिए खाना बनाती होंगी। तो हम जो भी ज़िंदगी में काम करते हैं ना, वो काम करने से पहले हमने उसके बारे में एक तरतीब सोची हुई होती है कि पहले मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। तो इसी तरह मजमून अगर आपको लिखना हो तो उसके लिए भी लिखने से पहले कुछ चीज़ों को सोचना चाहिए, जहन में रखना चाहिए। सबसे पहली बात कि मजमून हमेशा साफ सुथरे खुश खत सफ़े पर लिखा जाता है। अब हमारे पास कॉपियाँ हैं, ठीक है, तो कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए। अगर मैं अपनी कॉपी पे लाइनें वाइनें मार दूंगी, टेढ़े मेढ़े डिजाइन बनाऊंगी, तो अच्छा सा मजमून भी लिखा हुआ खराब लगेगा, ठीक है। जो भी आप मालूमात लिख रहे हैं, जो भी आपने जुमले उस मजमून में लिखने हैं, उन्हें बार बार रिपीट नहीं करना, दोहराना नहीं है, ठीक है। अब देखें, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कहानी सुनाऊं और कहूं अहमद एक बहुत अच्छा बच्चा है, अहमद रोज स्कूल जाता है, अहमद आज सुबह भी जल्दी उठा, अहमद ने कपड़े बदले, अहमद ने नाश्ता किया। आप कहेंगे कि क्या मिस ने अहमद 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 लगाया है। बात बार बार मैं जब अहमद 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 दोहराऊंगी तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह जब हम मजमून लिखते हैं तो जो जुमले हम लिख रहे होते हैं उन्हें हम बार बार दोहराते नहीं हैं, एक बात को एक ही दफा करते हैं, ठीक है। और गैर जरूरी बात नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं कराची के बारे में मजमून लिख रही हूँ कि कराची रोशनियों का शहर है, ये बहुत बड़ा वसी रकबे पर है फैला हुआ, और कराची की मैं मुख्तलिफ जगहों के बारे में लिखूं, तो मैं इसमें इस्लामाबाद की बात नहीं घुसाऊंगी। इस वक्त मैं कराची पे बात कर रही हूँ, मजमून लिख रही हूँ, तो फिर मैं इस्लामाबाद के बारे में कोई बात इसमें नहीं लिखूंगी क्योंकि इसका ताल्लुक नहीं है। गैर जरूरी बात नहीं लिखें। कायदे आजम पे मजमून लिख रहे हैं तो आप उसमें कोई और टॉपिक की बात नहीं डालेंगे, ठीक है। मजमून गलतियों से पाक हो, यानी गलतियां कोशिश करें कि उसमें ना हो। पहले आप किसी रफ जगह लिख लें और उसको पढ़ें, कुछ गलतियां हैं तो उसको ठीक करें, दुरुस्त करें, जुमलों की तरतीब करें और फिर उसको सही से लिखें। और जो कुछ भी आप किसी मौजू के बारे में लिखना चाहें तो उसको छोटे छोटे जुमलों में बयान करें, छोटे छोटे जुमले बना के लिख लें। बड़े बड़े जुमले नहीं आप लिखेंगे, क्योंकि जब हम बड़ा बड़ा जुमला लिखते हैं ना, दो तीन बातों को मिला के इकट्ठा एक जुमला बनाने की कोशिश करते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। और जो मालूमात आप लिखें वो आसान अल्फाज में हो, मुश्किल मुश्किल भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ये सोच के अगर मैं मजमून लिखूं कि भाई मैं डिक्शनरी में से ढूंढ के मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ लिखूंगी मजमून में और तो मेरा रोब बढ़ेगा या मेरा इम्प्रेशन पड़ेगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। बात हमें आसान लफ्ज़ों में करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद क्या होता है, बात को समझाना। अगर मैं मुश्किल मुश्किल बातें करके अपना रोब झाड़ने की कोशिश करूं तो उसका फायदा क्यों नहीं होगा।
اگلے کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ کہیں گے پتہ نہیں مس کی تو بات ہی میرے سر سے گزر گئی, سمجھ ہی نہیں آئی, ہے نا. تو آسان لفظوں میں آسان لفظ لکھیں گے, ایسے لفظ لکھیں گے کہ اس کا سننے والے کو اثر ہو, سمجھ میں آ جائے. اچھا یہ بتائیے, یہ کوئی اس میں یہ جو میں نے آپ کو 6 باتیں بتائی ہیں, اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں تھی جو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ کو؟ یہ ہاتھ پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں یا ابھی کے سوال پہ ہیں مسفرہ؟ میم پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں. پہلے سے اٹھے ہوئے ہیں, اچھا چلیں پھر نیچے کریں, چلیں کوئی بات نہیں. اچھا اب بتائیے, اب سب کے ہاتھ نیچے, اب بتائیں اگر کوئی مشکل ہے, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. ماہین کہہ رہی ہیں نو مس, ہاں ایہانیہ بھی کہہ رہی ہیں نو مس, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا سید اصغر سے پوچھ لیتے ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھایا بھی. جی سمجھ آ گیا. اچھا سمجھ آ گیا, ٹھیک ہے. پھر ہاتھ تھوڑی اٹھانا تھا, پھر تو نیچے رکھنا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے, چلیں پھر سمجھ میں آ گیا تو زنیرہ سے بھی پوچھ لیں. زنیرہ آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا بیٹی؟ زنیرہ مس غیر کا کیا مطلب ہے؟ کس کا بیٹی؟ لائن یہ رے کون سے نمبر پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ کہہ رہی ہیں غیر ضروری, 3 نمبر کہہ رہی ہیں. سب کی آواز نہیں آ رہی. دیکھو بیٹے اب آ رہی ہے میری آواز, اب آئی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا آپ کا وہ لفظ مجھے سمجھ میں نہیں آیا جس کا آپ مطلب مجھ سے پوچھ رہی تھی. سے جو ہے نا 3 نمبر کے فرسٹ والا ہے. ہاں غیر ضروری یعنی کہ فالتو باتیں, ٹھیک ہے, جن کا ٹاپک سے تعلق نہ ہو وہ بات مضمون میں نہیں لکھنی. یہ میں نے آپ کو سمجھایا نا کہ اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے کہ اگر آپ قائد اعظم کے بارے میں مضمون لکھ رہی ہیں تو پھر ہم اس میں قائد اعظم کے بارے میں ہی معلومات لکھیں گے, کسی اپنی امی کے بارے میں باتیں لکھنا نہیں شروع کر دیں گے. تو کیونکہ اگر اب اپنی امی کا بتائیں گے, جی میری امی تو صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں قائد اعظم کے مضمون میں, تو اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے, یہ غیر ضروری بات ہو گئی ہے نا. یہ میں نے آپ کو مثال دی کہ غیر ضروری بات بالکل مضمون میں نہیں لکھنی, صرف ہم ٹاپک پہ بات کریں گے, جس ٹاپک پہ جس موضوع پہ ہم نے مضمون لکھنا ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب دیکھیں مضمون کے مختلف حصے ہوتے ہیں. جو ایسے ہم لکھتے ہیں اردو میں جسے مضمون کہتے ہیں, اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں. اس کے 3 حصے ہیں, ٹھیک ہے, ہر مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں. نمبر 1 تمہید, اس کے دوسرے معنی ہے تعارف, یعنی جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں انٹروڈکشن, ٹھیک ہے. ایسے جیسے آپ فرض کریں پہلی کلاس آپ نئی کلاس میں آئے ہیں, آپ کا نیا دن ہے, پہلا دن ہے, تو ٹیچر آپ سے کہتی ہیں کہ اپنا آپ تعارف کروائیے, انٹروڈکشن کروائیے. تو جب ہم انٹروڈکشن کرواتے ہیں اپنا دوسروں سے, تو اس میں ہم کیا کیا باتیں ضروری بتاتے ہیں, ضروری باتیں ہم کیا کیا بتاتے ہیں دوسرے کو؟ آیان جی آیان, جب ہم ایک دوسرے سے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا, تعارف بتاتے ہیں, تو ہم کیا بتاتے ہیں اپنے بارے میں؟ میم اپنا نام بتاتے ہیں. شاباش, جی اپنا نام بتاتے ہیں, اپنے بارے میں ضروری باتیں بتا دیتے ہیں, نام بتا دیتے ہیں, عمر بتاتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ ہم کہاں رہتے ہیں, جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں ضروری. پھر دوسرا حصہ ہوتا ہے اس کا متن, یا آپ اسے کہیں نفس مضمون. یہ مضمون کا درمیان کا حصہ ہوتا ہے, 2nd پیراگراف جسے کہتے ہیں, دوسرا پیراگراف. اس میں جو آپ کا ٹاپک ہوتا ہے نا, اس کے بارے میں ضروری معلومات جتنی بھی ہوں وہ دی جاتی ہیں. وہ ہوتا ہے اختتام, یعنی کہ اینڈ کرنا, ختم کرنا. جب ہم مضمون کو ختم کرتے ہیں, ختم کر رہے ہوتے ہیں, تو ایسے نہیں کہ ٹھک کر کے بس بند کر دیں اس کو,
नहीं, आखिर में कोई राय दी जाती है टॉपिक के बारे में, या कोई दुआ लिख सकते हैं, किसी शायर का शेर लिख सकते हैं, किसी मशहूर शख्सियत की कोटेशन यानी कि कॉल लिख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप किसी दूसरे के घर में जाएं तो सबसे पहले जाके सलाम दुआ करते हैं, फिर आप अपनी बातें करते रहते हैं और आखिर में वापस आते वक्त फिर सलाम दुआ करते हैं, खैर खैरियत के उनकी पूछते हैं और उन्हें अपने घर आने की दावत देते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी के घर में जाके बस ज़रूरी बात की और कहा कि चलो भाई मैं तो चला, कुंडी लगा लो अपनी दरवाजे की। इस तरह नहीं करते हम, है ना। तरीका, हर चीज़ का तरीका होता है, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि तमहीद में किसी चीज़ का तारुफ पेश किया जाता है, यानी कि इंट्रोडक्शन बताया जाता है। और जो सेकंड पार्ट, दूसरा पैराग्राफ होता है, उसमें मजमून की में जो टॉपिक जो हमें दिया हुआ है, मौजू जो दिया हुआ है, उसके बारे में तफसील बताई जाती है। और आखिर में जो इस मौजू के बारे में या तो हम अपनी राय देने की कोशिश करते हैं या फिर कोई कुरानी आयत का हवाला दे देते हैं, हदीस लिख लेते हैं, कॉल लिख लेते हैं या शेर लिख लेते हैं। अब आप आए हैं नई क्लास में, ठीक है, तीसरी जमात आपने पढ़ ली, तो हम आसान टॉपिक से शुरू करेंगे। आज का जो मौजू जिस पे आपसे मैं थोड़ा सा मजमून लिखवाऊंगी, लिखेंगे तो आप बाद में, अभी आप मुझे ज़बानी ज़बानी बताएंगे। आपका जो मौजू है वो है मैं और मेरी नई जमात। ये टॉपिक है जिस पे आप अपने ख्यालात बताएंगे, ठीक है। ये देखें, ये आपकी किताब का वो सफ़ा है, आपका ये है टॉपिक, मैं और मेरी नई जमात। इसका हम मजमून कैसे बनाएंगे, इसका तरीका ये होगा। आप सब बच्चे ध्यान से देखें ताकि जो है ना, आपको मैं अभी बुलवाऊंगी, मतलब आप जाहिर है मुझे इस वक्त तो लिख कर नहीं दिखा सकते, तो मैं आपसे ज़बानी जो है वो मजमून बोलने के लिए कहूंगी, ठीक है, बनाने के लिए कहूंगी। आपने करना क्या है, देखें ये सेंटर में लिखा हुआ है टॉपिक, और ये देखें लिखा है नंबर 1 मेरा नाम, नंबर 2 मेरे वालिद और वालदा का नाम, और नंबर 3 ये लिखा है मेरी उम्र, नंबर 4 मेरे स्कूल का नाम, फिर नंबर 5 पे लिखा है नई जमात की तफसील। अब क्लास तो आपके सामने नहीं है, लेकिन आपने अपनी स्कूल की क्लासेस देखी हुई हैं, उसमें खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, और आपकी जमात की कोई ख़ास बात आपको कोई याद हो, ठीक है, कि क्या क्या था आपकी क्लास में। फिर नई जमात के बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं, जब आप नई क्लास में आते हैं तो आप क्या फील करते हैं, ठीक है। और इस जमात में आप अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहते हैं। जब आप 3 क्लास में थे तो आप क्या समझते थे कि अब आप क्या कोई कमी थी आपकी पढ़ाई में या आपकी आदतों में जिसको आप बेहतरी लाना चाहते हैं। क्या पहले आप अगर गौर से नहीं सुनते थे तो अब आप चाहते हैं कि मैं गौर से सुनूंगा या पार्टिसिपेशन करूंगा, मिस सवाल करेंगी तो जवाब दूंगा। पढ़ाई में आप अपनी बेहतरी लाना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी आप शरारत कर लेते थे, अब आप शरारत नहीं करेंगे, अदब और एहतराम से रहेंगे, तमीज से बैठेंगे, लिखाई को इम्प्रूव करेंगे। ये सब पॉइंट्स हैं जिनको मिला के आप मजमून बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो पहला पैराग्राफ होगा ना, ये तो लिखने का तरीका बता रही हूँ, चलिए लिखने का तरीका हम करेंगे बाद में, अभी हम आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, अब देखें, पहले तो मीला बेटी जरा आप हाथ नीचे कीजिए ऐसे। अच्छा, अब मेरा सवाल सुनेंगे आप ध्यान से। वो बच्चे हाथ उठाएं जो थोड़ा सा, आप लोग अपने जहन में तारुफ सोचिए, मैं और मेरी नई जमात, अपने जहन में 2-3 जुमलों को तरतीब दें। किस तरह से, ये सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 ये अपने जहन में रखें, इनके जवाबात को मिलाएं और एक छोटा सा पैराग्राफ आप जहन में तरतीब दे के मुझे सुनाएं। ये तमहीद हो जाएगी। असगर,
मिस मेरा नाम असगर है और मेरे वालिद का नाम हैदर है, हैदर काज़मी है, और मेरी मम्मा का नाम सबा ज़हरा है, और मेरे स्कूल का नाम FDC फैसल है। ठीक है। उम्र? मेरी उम्र 10 साल है। ठीक है, बस ये आपने 4 सवालात को मिला के एक पैराग्राफ बना दिया। अच्छा, अब असगर बेटे ध्यान से सुने, आप जो हैं आपने कहा मम्मा, मम्मा नहीं कहेंगे, आप कहेंगे वालदा। ठीक है, ये लिखा है ना मम्मा, मम्मा आप घर में बोलते हैं, अच्छी बात है, आप बोलिए, लेकिन जब हम लिखेंगे उर्दू तो हम लिखेंगे वालदा, अम्मी को कहते हैं। ठीक है, मेरे वालिद का नाम फलां और मेरी वालदा का नाम जो आपने बताया। अच्छा, फिर आपने बताया मेरे स्कूल का नाम है FDC फैसल। नाम तो बिल्कुल आपने ठीक बताया, लेकिन ये हो गया मुखफ़्फ़फ़ यानी एब्रीविएशन। आप कहेंगे मेरे स्कूल का नाम फजाइया डिग्री कॉलेज फैसल है। ठीक है, और उम्र आपने अपनी बता दी कि 10 साल। जब आपने ये 4 जुमले मिलाए तो ये तमहीद का पैराग्राफ बन गया। शाबाश, बताया आपने, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब और कोई बच्चा यही तमहीद का पैराग्राफ बनाएगा? शान से आप बनाइए बेटे। मेरा नाम है शानज़ फातिमा बिलगिरामी। जी। मेरे वालिद का नाम है मोहम्मद फैसल रियाज बिलगिरामी। मेरी वालिदा का नाम है हिरा गजल। शाबाश। उम्र है 9 साल। ठीक है। मेरे स्कूल हाँ का नाम है फजाइया डिग्री कॉलेज फैसल। हाँ, शाबाश, आपके जवाब भी बिल्कुल ठीक है बेटे। लेकिन जुमले को ऐसे लिखेंगे, मेरी वालदा का नाम है, नहीं, मेरी वालदा का नाम क्या बताया वालदा का नाम? मिसाल के तौर पे मैं कहूँ हिरा कि मेरी, गजल। जी, जैसे अब मैं कहूँ कि मेरी वालदा का नाम शहनाज अख्तर है, ऐसे अगर मैं कहूंगी कि मेरी वालदा का नाम है शहनाज अख्तर, जुमला ये भी ठीक है, लेकिन बोलने में थोड़ा सा हट के लग रहा है। ठीक है, शाबाश। आमना सीमाब, आमना सीमाब जो है बेटे, ये आमना सीमाब आप अपनी स्क्रीन पे से क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आमना सीमाब 4FID 16038 and Dua F is requesting remote control of your screen. Why? इधर उधर बेटे छेड़छाड़ नहीं कीजिए और ध्यान से शाबाश पढ़िए। अच्छा, शाबाश बेटी शान से, ये आपने बिल्कुल ठीक तमहीद बनाई। अच्छा, अब हम करेंगे सेकंड पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो है वो आप, ये तो आपने देखें, ये देखें, ये सरगर्मी अभी आपने की कि पहला पैराग्राफ आपने बनाया, सवाल नंबर 1 से लेके 4 तक के जवाब जब दिए, तो ये देखें, ये एक पहला पैराग्राफ बन गया। तमहीद हमने कर ली। अब हम करेंगे दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, ये है मतन, यानी कि मजमून का दरमियानी हिस्सा और सबसे अहम हिस्सा, जिसमें हम मौजू के बारे में बुनियादी मालूमात देते हैं। इसको आप कैसे बनाएंगे? जब आप सवाल नंबर 5 और 6 का जवाब एक साथ मिला के लिखेंगे तो मजमून का दूसरा पैराग्राफ यानी कि मतन बनेगा। अब देखें, सवाल नंबर 5 क्या है? नई जमात की तफसीलात बताएंगे आप, कि खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, या कोई खास बात आपको याद है। चलें, अब ये कौन बताएगा? मिहलाब। जी मिहलाब। अपनी नई जमात के बारे में ये महसूस कर रही हूँ, आगे जाके बहुत अच्छा टीचर के साथ बिहेवियर रखूंगी, और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं अपने बड़ी हो रही हूँ और अपनी असली जमात में आ गई हूँ, और बहुत अच्छे मुझे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ठीक है, शाबाश, शाबाश। फ्रेंड्स को कहेंगे दोस्त। ठीक है, या आप रफीक कह सकते हैं, या हम जमात भी कह सकती हैं। ठीक है, शाबाश, ये ठीक है। और कौन सेकंड पैराग्राफ यानी दूसरा पैराग्राफ बनाएगा मतन का? हानिया। जी हानिया। मिस जी मिस 6 का
آپ یا 5ویں سوال کا بتا دیں جواب یا 6ٹھے کا بتا دیں, جو بھی آپ بتائیں گی سیکنڈ پیراگراف میں آ جائے گا. کیا محسوس کر رہے ہیں. یہ بتا دیں تفصیلات. نئی جماعت کے بارے میں بہت اچھا محسوس کرتی تھی. کرتی ہوں. بہت اچھا لگتا تھا جب میں وہاں پر جاتی تھی تو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, شاباش. اچھا اب یہ سوال نمبر 5 کا جواب کون بتائے گا, اس کو جملوں میں کون ترتیب دے گا کہ جماعت میں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کوئی خاص. جی آیان محمود. میم میری کلاس کی 2 کھڑکیاں اور وہ بہت ہوادار ہے اور ایک دروازہ ہے. شاباش. میری جماعت, اچھا کلاس کی جگہ کہیں گے آپ جماعت. جی بیٹے. میم ایک بچہ ریکارڈنگ کے نیم سے ہے. ہاں جی جی بیٹے وہ میں ہی ہوں, میں ریکارڈ کر رہی ہوں. وہ میں ہی ہوں. کیونکہ اس لیپ ٹاپ سے ریکارڈ نہیں ہو رہا نا, تو میں دوسری ڈیوائس سے اس کو ریکارڈ کر رہی ہوں لیسن کو. ٹھیک ہے شاباش, ویسے ہیں آپ سمجھدار. شاباش. اچھا جی, جماعت میں بتایا کہ میری 2 کھڑکیاں ہیں اور جماعت میری کیا ہے, ہوادار. بس آپ نے کلاس کہا ہے جماعت کی جگہ, تو ہم لفظ استعمال کریں گے جماعت. ٹھیک ہے, جماعت, میری جماعت بہت ہوادار ہے. شاباش, اچھا جملہ ہے. اچھا جی ماہین آپ بتائیے. یس میم. جی ماہین آپ بتائیں. جی یہ سوال نمبر 5 یا 6 میں سے کوئی ایک سوال کو جملے میں ترتیب دیں. مجھے کلاس میں بہت مزہ آتا تھا. آتا ہے کریں گے ہم, ماضی میں نہیں لکھ رہے, مضمون ایسے لکھیں گے حال میں. ٹھیک ہے. یس میم. نئی جماعت کے بارے میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. سوری بیٹا. مس میری کلاس بہت ہوادار ہے. ٹھیک ہے شاباش. اچھا جی, اب ہم پوچھتے ہیں کس سے, مشیل آپ بتائیں بیٹے. باقی بچے ذہن میں سوچ کے رکھیں پہلے سے. مشیل بیٹے آواز نہیں آ رہی مجھے. یس مس. ہاں مشیل آپ بتائیں, یہ سوال نمبر 5 یا 6 اس میں سے پہلے 5 کو بتائیں, کیونکہ ہم ترتیب سے لکھیں گے نا. نئی جماعت کی تفصیل بتائیں. فرض کریں کہ آپ اس وقت نئی جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں, نئے کلاس روم میں, 4 کے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ آپ کی جماعت میں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں. آپ نے دیکھا تو ہوگا نا 4 والا بلاک. یس. ہاں, اب آپ اس کو ذہن میں سوچیں اور بتائیں کہ میری جماعت میں کتنی کھڑکیاں ہیں, دروازے کتنے ہیں, اور کیا کیا ہوگا کلاس میں. میری جماعت میں 3 کھڑکیاں ہیں اور ایک دروازہ ہے اور 2 پنکھے ہیں. شاباش. اچھا ویسے میں آپ کو بتاؤں, چوتھی جماعت میں جو ہے نا, آپ کی جماعت میں 3 پنکھے ہوں گے اور 4 5 6 کھڑکیاں ہیں, 2 دروازے ہیں ماشاءاللہ, اور جماعت بہت ہوادار ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے, پچھلی دیوار پہ کیا لگا ہوتا ہے, ایک بڑا سا بورڈ جو ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں آپ. بلیک بورڈ. نہیں بلیک بورڈ نہیں ہوتا جس پہ آپ اپنے وہ ڈرائنگز اور وہ لگاتے ہیں, کریٹیوٹی کی چیزیں لگاتے ہیں, سرگرمی جو کرتے ہیں وہ لگاتے ہیں, ٹیچرز نے چارٹ لگائے, اس بورڈ کو کیا کہتے ہیں بھلا. ڈرائنگ. سافٹ بورڈ کہتے ہیں اسے, سافٹ بورڈ. اس کے اندر پن چلی جاتی ہے نا, ایسے تھم پن اندر چلی جاتی ہے, اس لیے اس کو سافٹ بورڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سافٹ بورڈ. صحیح. شاباش شاباش. اچھا تو جب ہم ایسے اس کو ملائیں گے اور اس کو ملائیں گے تو یہ ہمارا متن بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ایسے, میری جماعت میں 5 کھڑکیاں اور 2 دروازے ہیں. یہ مثال کے طور پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سفید بورڈ, سفید وائٹ بورڈ جس پہ مس لکھتی ہیں آپ کی. ٹھیک ہے, یہ وہ ہو گیا. ایک سفید بورڈ اور ایک سافٹ بورڈ ہے. 2 الماریاں ہیں, بچوں کے بیٹھنے کے لیے ڈیسک ہیں,
एक मेज और एक कुर्सी है। सॉफ्ट बोर्ड पर बच्चे मुख्तलिफ तस्वीर बनाकर लगाते हैं। मुझे अपनी नई जमात में आकर बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ तक तो हो गया सवाल नंबर 5 का जवाब सारा मिलाकर। अब यहाँ से सवाल नंबर 6 का जवाब दे रहा है बच्चा, ठीक है। मुझे अपनी नई जमात में आकर बहुत अच्छा लगा। हमारी टीचर, ये वैसे मुझसे भी गलती हो गई, ये टीचर्स नहीं लिखना था, असातिज़ा लिखना था मैंने। हमारे उस्ताद लिखें या हमारे असातिज़ा बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं और हमारा बहुत ख्याल रखते हैं या रखती हैं। उस्तानिया, अगर रखती हैं आएगा तो फिर यहाँ पर उस्तानिया आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखें, ये एक मिसाल मैंने बनाई हुई है, ठीक। इस तरह से आप दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे। ये मतन हो गया। अब तीसरा पैराग्राफ मैंने आपको बताया था, ये इख्तिताम का होता है, जब हम मजमून को ख़त्म कर रहे होते हैं, बड़े तरीके से अच्छे से बात को ख़त्म करते हैं। इसमें हम सवाल नंबर 7 का जवाब देंगे। और सवाल नंबर 7 है, इस जमात में आप अपने आप में क्या बेहतरी लाना चाहते हैं, ठीक है। ये कौन बताएगा? जी कौसैन, सैयदा कौसैन। यस मैम। आप अपने अंदर नई जमात में क्या बेहतरी लाना चाहती हैं? मैम मैं नई जमात में हर लेक्चर को गौर से सुनूंगी, शाबाश, तमाम टीचरों का एहतराम करूंगी, शाबाश, बहुत अच्छे, अपने पढ़ाई पे तवज्जो दूंगी, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे अपने जुमले हैं। हम और दोस्तों से मिलजुल कर रहूंगी। शाबाश, देखिए कितने अच्छे जुमले बोले हैं सैयदा कौसैन ने, कि मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दूंगी और मैं अपने हम जमात बच्चों से मिलजुल कर रहूंगी, और मैं लेक्चर की जगह आएगा असबाक या सबक को ध्यान से सुनूंगी, तवज्जो से सुनूंगी। इस तरह ये देखें, इस तरह करके आप लोगों ने ये आखिरी पैराग्राफ ये देखें, ऐसे उन्होंने सैयदा कौसैन ने बताया। हमें भी चाहिए कि हम उस्ताद की बात गौर से सुने, जमात में ज़्यादा शोर न मचाएं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने उस्ताद से अदब और एहतराम से पेश आएं, जमात में तमीज़ से बैठकर अपना काम करें। ये असल में ना ये तमीज़ नहीं है, ये बे और ते का नुक्ता मिला हुआ लग रहा है ये राइटिंग की में ना। अच्छा, अपनी लिखाई पर तवज्जो दें, उस्ताद जो काम दें उसे वक्त पर मुकम्मल करें। तो इस तरह करके हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। देखें अब आज हमने इसमें क्या सीखा है, मजमून सीखा कि मजमून निगारी क्या होती है। किसी भी मौजू के बारे में अच्छे खूबसूरत जुमलों में, सादा जुमलों में तसलसल के साथ एक लिखना मजमून निगारी होता है। मजमून निगारी के 3 हिस्से होते हैं। तमहीद, इससे मुराद है तारुफ। मतन, ये दरमियान का हिस्सा होता है, इसमें मौजू के बारे में तफसील बताई जाती है। और इख्तिताम, इसमें अपनी राय देते हैं या कोई दुआ लिखी जा सकती है कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि तमाम बच्चे दिल लगा कर पढ़ें, मुल्क का नाम रोशन करें, इस तरह करके, या कोई शेर लिख दें, और या फिर कोई कॉल भी लिख, कॉल कहते हैं कोटेशन को, किसी मशहूर इंसान ने कोई बात की हो तो उसे कोटेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने मुझे ये बताना है कि मजमून निगारी किसे कहते हैं। मजमून निगारी किसे कहते हैं? शाबाश, अब्दुल मुईद। मैम जो एक नज़म की तरह से लिखी जाती है। हाँ, नज़म की, ये भी आपने वैसे अच्छी बात की है। नज़म का मतलब ही यही होता है तरतीब, तरतीब से लिखना, यानी डिसिप्लिन के साथ एक चीज लिखी जाए। ये भी अच्छा जवाब है, शाबाश। ये भी बहुत अच्छा लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है। नज़में भी जो हम पढ़ते हैं ना, उनमें एक तरतीब होती है, कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, तरतीब से एक नज़म लिखी होती है। शाबाश, मुझे अच्छा लगा आपका जवाब। अच्छा, अब आप फिर ये बताइए कि मजमून के कितने हिस्से होते हैं, कौन बताएगा? मुस्फिरा, मजमून के कितने हिस्से होते हैं? टीचर 4। नहीं,
1 माइनस करें इसमें से। टीचर 3। 3, 3, 3 को उर्दू में कहते हैं 3। 3, शाबाश। 3 हिस्से होते हैं। अच्छा, पहला हिस्सा क्या, पहले हिस्से का नाम कौन बताएगा? अब्दुल मुईद ने बता दिया है जवाब। अब्दुल मुईद से माहीन आप बताएं। माहीन असद, पहले हिस्से का नाम। शाबाश, जल्दी जल्दी बताना है बेटे, क्लास का टाइम खत्म हो जाता है ना फिर। पहले हिस्से का नाम किसे आता है? जी हानिया ईमान मिस 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 कर रहे हैं। जी बेटे नहीं समझ में आया मुझे चंदा। खूबसूरत अल्फाज में लिखना तो मजमून निगारी होता है। चल चल, हानिया मिस मिस कर रही है चैट में। जी हानिया, तमीद या शाबाश। तारुफ, वेरी गुड, शाबाश। ये देखें वो बच्चे क्लास में करते हैं ना, मिस हानिया ऐसे चैट में कर रही थी, इसलिए हमने हानिया से पूछ लिया। शाबाश हानिया, जवाब सही है आपका। पहला हिस्सा होता है तमहीद या तारुफ। अच्छा, दूसरे हिस्से का नाम कौन बताएगा जल्दी से? सिर्फ 2 मिनट रह गए क्लास खत्म होने में। गौस जल्दी से बताएंगे, जल्दी से जल्दी से, जल्दी जल्दी बताओ मेरा बेटा। गौस आपने माइक ही बंद कर लिया। हाँ खुल गया। दूसरे हिस्से का नाम बताएं बेटे जल्दी से चंदा। उम्मे ऐमन आप बता दें, चले। उनकी गौस की आवाज नहीं आ रही मुझे। उम्मे ऐमन आप बताइए बेटे, क्लास खत्म हो जाएगी। और आ रहा है उम्मे ऐमन बेटे, मजमून का दूसरा हिस्सा का नाम क्या है? तारुफ। नहीं, तारुफ तो हो गया, वो तो पहला हिस्सा था। आपके बेटे माइक में बहुत शोर आता है, बहुत देर से आवाज आती है ठंडा। जी आयान महमूद बेटे, 1 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में, जल्दी जल्दी से बताएं। हाँ जी, सैयदा कौसैन कह रही हैं। जी 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 जी, मतन, शाबाश। सैयदा कौसैन ने भी चैट में जवाब दे दिया था, मतन। और आखिरी हिस्सा क्या होता है? जी हानिया, आखिरी हिस्सा क्या होता है? मिस इख्तिताम। शाबाश। अब ये आपके घर का काम है कि मैं और मेरी जमात के मौजू पर 3 पैराग्राफ का मजमून लिखना है आपने। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है। छोटा सा मजमून लिखिएगा 3 पैराग्राफ का। ये आपके पास किताब मौजूद है, मैं ग्रुप में इसकी तस्वीर भी भेज दूंगी उस पेज की, ठीक है, जिसमें आपको हिंट्स दिए हुए हैं, इसमें इशारे दिए हुए हैं। ये आज का पूरा सबक था। इन बेटे मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है।